Hello friends, welcome to TechCube Gate classes. My name is Professor Vivek Singh Rathore and I am Assistant Professor in Electronics and Telecommunication Department in Government Engineering College, Bilaspur, Chhattisgarh. I have 3+ years of teaching experience, and in this video lecture series I am dealing with signals and systems subject. Till now we have completed module 2 and we are in module 3, and 4 lectures are already completed in module 3, and we are seeing Fourier series for periodic signal, and in which in last lecture I have dealt with some of the problems, and we have seen some conclusions that whenever a signal is real valued and it is neither even and odd, then what will be the Fourier coefficient. If our signal is real valued and even signal, then what will be the Fourier coefficient. If it is real and odd, then what will be Fourier coefficient. This we have seen in the last lecture. Now we will move forward and we'll see some more conclusions, and we'll see what is actually half wave symmetry and how we can use it in calculating the answers in objective type of questions. So let's get started. Okay, see, first we need to see what is half wave symmetry. Okay, half wave symmetry, what does it actually mean? Okay, half wave symmetry. Half wave symmetry, see, the word tells us half wave means the wavelength will be half. Okay, so see, as you know, lambda is equal to c by f is there. Okay, so lambda is inversely proportional to f and f is inversely proportional to t, so this is there. Okay, so if we are taking half wave, means half time period is also taken. So see, half wave symmetry, it mathematically means that whenever our signal ft is equal to, see, in periodic signal what we have seen, that ft is equal to f of t plus minus t, then it will be set to as periodic signal. Means अगर हम एक सिग्नल को उसके टाइम पीरियड t में शिफ्ट करेंगे, चाहे हम एडवांस करें चाहे डिले करें, वॉट एवर इट मे बी द केस, if it is equal to the ft, then it is called as periodic signal. Same as हाफ वेव सिमेट्री में भी हम यही करेंगे, हम हाफ वेव में शिफ्ट करेंगे, मींस एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू. ओके, एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, इफ वी आर शिफ्टिंग एंड वी आर टेकिंग इफ मैग्नीट्यूड रिवर्सल है, हम जब एफ टी अगर बराबर है माइनस ऑफ एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, इस सिग्नल को या इस सिग्नल को हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नल ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो करता है. इट फॉलोज ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल. और इससे हमको क्या चीज मिल जाती है, हम इसको क्यों खोजें, अगर सिमेट्रिक होगा इवन से और ऑड तो हम देख ही लेते हैं ऊपर से, तो उससे हम पता चल जाता है कि हमको a0 की वैल्यू रहेगा कि नहीं, an की वैल्यू रहेगा कि नहीं, bn की वैल्यू रहेगा कि नहीं, ये सब हमको इवन और ऑड देखने से पता चल जाता है. तो हम हाफ वेव सिमेट्रिक में क्यों जाएं. बात यह है कि इन ऑप्शन समवेयर you have been asked then whether it has odd cosine the odd cosine terms or it has even cosine या sine terms या odd sine terms even cosine terms. कुछ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके इस ऑप्शंस में अगर मिलता है तो आपको ज़रूरी है कि आपको हाफ वेव सिमेट्रिक ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो ऑड टर्म दे दिया है मतलब आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हाफ वेव सिमेट्रिक की बात चल रही है ना. तो चलिए हम देखते हैं कि ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक में होता क्या है. ऑड हाफ वेव, अगर आपने ये पहचान लिया सिग्नल को देखने के बाद, इस थोड़ा मोड़ा शिफ्टिंग करने के बाद कि एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये एक ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है. और इस केस में आप सीधा सीधा घोषित कर सकते हैं कि इसका जो फोरियर कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा जब आपका, ठीक है, जब आपका ये जो n है वो आपका इवन होगा. ठीक है, वेन एवर n इज इवन देन योर फोरियर कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0. ये आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं. ये ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है. देखिए, ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक मतलब ऑड टर्म्स ही आएंगे इसमें, इवन टर्म्स आएगा नहीं. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, है ना. और इसी का दूसरा फॉर्म है कि अगर एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू होता है, इस केस को हम बोलते हैं कि ये इवन हाफ वेव सिमेट्रिक है, इवन हाफ वेव सिमेट्रिक. और इस केस में आपका जो Cn की वैल्यू होती है फोरियर कोफिशिएंट, वो 0 होगी जब कभी भी आपका n ऑड होगा. ठीक है,
तो इवन हाफ वेव सिमेट्रिक के लिए जब n ऑड होगा तब आपकी फोरियर कोफिशिएंट 0 होगी, और आपका ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक के लिए Cn की वैल्यू 0 होगी फॉर n इज इक्वल टू 0, ठीक है, n इज इक्वल टू इवन। तो कभी भी आपको ये केस ध्यान रखिएगा हाफ वेव सिमेट्रिक का। इसमें मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस हाफ वेव सिमेट्रिक का लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लेट सपोज आपको एक क्वेश्चन मिलता है, आपको एक ये मिलता है, मान लीजिए ये एक सिग्नल है, ठीक है, इतना आपको दिया है, मतलब एक सिग्नल का सिर्फ टाइम पीरियड टी में आपका इसका वेरिएशन आपको दे रखा है, और आपको पूछा जाता है कि ये ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है, इवन हाफ वेव सिमेट्रिक है, या ये क्या है क्या बेसिकली। तो आप यहाँ चेक करेंगे पहले ना, सबसे फर्स्ट स्टेप विल बी आप इसको पूरा प्लॉट करिए। मतलब अगर एक टाइम पीरियड है ना यहाँ पे, तो आपको इसको नेगेटिव हाफ में भी उसका एक टाइम पीरियड प्लॉट करना होगा। तो आप इसको प्लॉट कर लीजिए एक हाफ, जैसे यहाँ पे ये ऐसा मौजूद है, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड टी में है, वैसे ही ऑब्वियसली ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा और ये माइनस टी पे होगा। ये आपका एक कंप्लीट, मतलब यहाँ से तो कंप्लीट हाफ साइकिल, मतलब फुल साइकिल है, इधर भी कंप्लीट फुल साइकिल है। अब आपको मैं क्या पूछ रहा था, अगर ये आपका एफ टी है, अब बेसिकली ये है एफ टी, है ना, यही एफ टी, तो हम इसी को प्लॉट किए। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट करके देखिए तो भाई कि ये क्या हो, आप एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू, मतलब देखिए यहाँ पे अगर टी बाई टू है तो इसको थोड़ा सा एडवांस शिफ्ट करके देखिए। तो एडवांस शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली आपको ऐसा कुछ मिलेगा। मैं इसको येलो से प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, ये आपका आएगा, और दिस ये ऐसा है बेसिकली, यहाँ से ऐसा है, और दिस विल बी ये ऐसा आया, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये आपका ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए वही सिग्नल था, बस उसको हम लोगों ने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, तो ये आपका आ गया जो था 0 पॉइंट तो था, ये पॉइंट आपका इधर हो गया। मतलब ये आप बोल सकते हैं इसको एफ टी प्लस टी बाई टू कर सकते हैं ना, एफ टी प्लस टी बाई टू इसको आप कर सकते हैं। क्या ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर हैं क्या, ये देखिए दोनों को, क्या ये सिग्नल आपको बराबर दिख रहे हैं। आप इसको और प्लॉट कर सकते हैं, कोई इसमें वाली बात नहीं है, इसको आप ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपको दिख रहा है क्या ये सिग्नल और ये सिग्नल बराबर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये बराबर है ही नहीं। तो आपका ये इवन हाफ वेव सिमेट्रिक तो है नहीं। अब चलिए इसको एक बार ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड रिवर्सल करते हैं। सो मैग्नीट्यूड रिवर्सल में क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, 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 ठीक है। क्या ये दोनों सिग्नल सेम दिख रहे हैं क्या? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सर सिग्नल बिल्कुल सेम जैसे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा की बात यह है कि एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी प्लस टी बाई टू। आप इसको नेगेटिव वे में भी करके देख सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो अगर ऐसा आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये सिग्नल क्या होगा, ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक होगा। और अगर ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो 0 होगा फॉर n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू इवन में ये फोरियर कोफिशिएंट 0 होगा। और इससे हमको ये भी पता चल जाता है कि भैया सी एन की वैल्यू तो ए टू माइनस जे बी एन बाई टू होता था, है ना। तो वैसे भी देखिए इवन टर्म्स के लिए ये वैल्यू 0 हो जानी है ना। तो सी एन की वैल्यू आपकी इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप 0 कर सकते हैं जब भी आप ये 0 रहेगा, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली आपका कुछ आपको समझ में आया होगा। मैं एक और आपको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आप चलिए ये वाला क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। आपको कोई ऐसा बोलता है, कोई आपको कुछ ऐसा बोला कि ये आपका एक सिग्नल है, कुछ ऐसा ये है, इसको बोल दिया कि भैया ये ना ये टी है, ठीक है, और ये बोल दिया कि एक टाइम पीरियड में आपको वेरिएशन हम दिखाते हैं। अब आप इसको क्या करिए, इसको चेक करिए कि ये कौन सा हाफ वेव सिमेट्री, पहली बात तो आप हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है कि नहीं, है ना, और इवन है कि ऑड है वो आपको चेक करना है। तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये सिग्नल को, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि हम इस सिग्नल को इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड है उसको हम नेगेटिव एक्सिस में भी प्लॉट कर लेते हैं।
तो हम इसको ऐसे कुछ बनाते हैं। देखिए ये आपका ऐसा सिग्नल है, ये आपका ऐसा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना। वैसे ही आपको यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, ये ठीक है। ये आपका हो गया, इधर भी टी है और इधर भी माइनस टी है। ये आपका कंप्लीट एक मतलब दो टाइम, दो पीरियड के लिए हो गया। एक आपका इधर टी तक, इधर नेगेटिव में सेम। अब ये तो आपका एफ टी हो गया, इट इज कॉल्ड एज एफ टी। नाउ विल सी एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू। मतलब अगर अपन इसको देखें कि अगर इसको अपन थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका टी बाई टू है ना। तो इसको हम इधर ले जाते हैं, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, ये वाला पॉइंट को हम इधर बनाते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं और ये आधा आ गया, फिर ये हम आधा लिए और ये हम लिए एंड देन इट गोज ऑन। फिर यहाँ पे भी हम ऐसा करते हैं क्योंकि ये हमारा ये है और ये है। तो देखिए क्या आपको एफ टी, ठीक है, और एफ टी प्लस टी बाई टू क्या सेम लग रहा है? ठीक है, एफ टी की वैल्यू अगर आप देखेंगे, एफ टी की वैल्यू ये है, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आपको सेम तो लग नहीं रही होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सिग्नल को हम एक और मैग्नीट्यूड रिवर्सल करके चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड रिवर्सल हम करके अगर चेक किए तो ये सब चीज़ उल्टा हो जाएगा। मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, 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 और ये चलता चला जाएगा। क्या आपको ये सिग्नल और ये सिग्नल सेम, हूबहू सेम जैसे दिखते हैं क्या? अगर आपको दिखते होंगे सेम, तो ये एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टी बाई टू को तो फॉलो कर रहा है लेकिन माइनस में है ना। तो ये भी आपका ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है, लेकिन इसका जो टर्म्स आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे पहले आपको ये चेक करना है। देखिए ये भी ऑड हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये सिग्नल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें ना कौन से टर्म होंगे, या तो ए जीरो होगा, ए एन होगा, बी एन होगा, है ना। और ये क्या ए एन बी एन सारे टर्म को एग्जिस्ट करेंगे क्या? इसके मुताबिक, तो इस कंडीशन के मुताबिक जब भी एन की वैल्यू इवन होगी तो आपकी सी एन की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, है ना। सी एन की वैल्यू इसमें जीरो हो जानी चाहिए अगर आपकी एन की वैल्यू इवन है तो अब मुद्दे की बात यह है कि एन की वैल्यू इवन होगी तो सी एन की वैल्यू जीरो हो जानी है। लेकिन ये सिग्नल कायदे से अगर आप देखें एफ टी को, तो एफ टी आपका इवन सिग्नल दिखता है ना, ये इवन सिग्नल है। और अगर इवन सिग्नल है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें ना जो टर्म्स होंगे वो जब भी इवन वाले सिग्नल होते हैं तो उसमें सिर्फ कोसाइन टर्म्स होते हैं। और कोसाइन टर्म्स कौन से होंगे? अब देखिए कोसाइन टर्म्स तो बहुत सारे होंगे। मतलब कोसाइन टर्म जैसे आप ओमेगा नॉट एक फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, तो क्या हर टर्म्स हर फ्रीक्वेंसी में कोसाइन रहेगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये वाला कंडीशन देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि ये हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक। मतलब इसका एन जब भी इवन होगा तब ये जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोसाइन जो टर्म्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑड टर्म्स में ही होंगे, क्योंकि इवन टर्म तो जीरो हो जा रहा है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि इसमें देखिए कोई भी सिग्नल आएगा तो आपको ये याद रखना है कि इसमें साइन टर्म आएगा या कोसाइन टर्म आएगा, है ना। साइन टर्म आएगा या कोसाइन टर्म आएगा, ये आपको कहाँ से देख के पता चलेगा? ये आपको देख के पता चलेगा ये सिग्नल इवन है या ऑड है ना। इवन है या ऑड है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिग्नल आपका साइन टर्म को कैरी करेगा कि कोसाइन टर्म को कैरी करेगा। अब हाफ वेव सिमेट्रिक से ये पता चलता है कि ये इवन टर्म्स को ही सिर्फ पकड़ेगा, इवन या फिर ऑड फ्रीक्वेंसी को भी पकड़ेगा, है ना। इवन और ऑड दोनों को पकड़ने वाला। तो देखिए आपको अगर मैं ये वाला टर्म बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन था हम पहले सॉल्व किए थे, ये बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ऑड सिग्नल की तरह दिख रहा है ना। तो ये ऑड सिग्नल है, तो ये वाला सिग्नल जो है आपका ये ऑड है, इसलिए ये सिर्फ साइन टर्म को रहेगा। इसके अंदर जो एक्सपांशन करेंगे तो सिर्फ साइन टर्म्स रहेगा। और साइन टर्म में भी जब ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुका है, एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी प्लस टी बाई टू, तो इसमें सिर्फ
ऑड टर्म्स ही रहेंगे। तो इसमें आप सिंपल बता सकते हैं कि भैया वो वाले जो क्वेश्चन है उसमें साइन टर्म्स नहीं, ऑड साइन टर्म्स ही रहेंगे। और ये वाले क्वेश्चन में आपको सिग्नल देखने के साथ आपको पता चल गया कि ये इवन सिग्नल है, तो इवन है तो कोसाइन टर्म ही रहने वाले हैं। और कोसाइन टर्म कौन से वाला रहेंगे भैया, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी प्लस टू बाई टू, इसका मतलब इवन टर्म तो रहने नहीं वाले, तो इसमें भी ऑड टर्म रहेंगे लेकिन ऑड कोसाइन टर्म रहेंगे। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसमें, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सिंपल उसको बताइएगा कि इसमें क्या रहने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा मिटा देते हैं अपन, यहाँ से आते हैं, चलिए ये एक, ठीक है, सॉटूथ है और ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये t/2 है और ये t है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सिग्नल है ft, ये पीरियोडिक है, ये बोल दिया है कि ये सिग्नल आपका पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है और एक टाइम पीरियड में इसका वेरिएशन दे रखा है। अब आपको इसका फोरियर सीरीज बताना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोरियर सीरीज में डीसी टर्म रहने वाला है, ये ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन डीसी टर्म है, सेकेंड टर्म ऑप्शन है आपका भी कोसाइन टर्म रहने वाला है, थर्ड आपका सॉरी साइन टर्म रहने वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, एक्चुअली ये फर्स्ट ऑप्शन है कि फोरियर सीरीज में डीसी टर्म कोसाइन टर्म साइन टर्म रहने वाला है। सेकेंड ऑप्शन में बोलेगा कि सिर्फ साइन टर्म ही यहाँ पे रहने वाला है, ओनली साइन टर्म। थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि ऑड हार्मोनिक्स ही रहने वाला है क्या इसमें, और फोर्थ टर्म में ये फोर्थ ऑप्शन में पूछता है कि ऑड साइन टर्म ही रहने वाले हैं क्या। अब देखिए आपको ये सिग्नल दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं इसमें ये सिग्नल जैसा ये है कि ना ये इवन है ना ये ऑड है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपांशन करते हैं, चलिए एफ टी को ना, एक पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक है तो अपन इसको थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। आपका सिग्नल ऐसा दिया हुआ है ना, आपका सिग्नल ऐसा दिया हुआ है, जो आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है ना, ये आपका सिग्नल है, ये t/2 है और ये t है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांशन करते हैं अपन, इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेके जाते हैं, इसको ऐसा करते हैं और इसको हम थोड़ा ऐसा करते हैं, और ये है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट सेम नहीं है, तो ना ये सिग्नल इवन है और ना ही ये सिग्नल ऑड है, ये सिग्नल दोनों ही ना इवन है ना ऑड है, ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में ये आएगा कि ये इसका जो नाइदर इवन नॉर ऑड और इसका जो फोरियर कोफिशिएंट होंगे वो पूरा जनरली कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसा हमने कंक्लूजन में देख रखा है ना, कॉम्प्लेक्स होगा मतलब रियल टर्म भी होगा, इमेजिनरी टर्म भी होगा। और इसका जो फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट अगर आप देखें तो a0 भी रहने वाला है, an भी रहने वाला है, bn भी रहने वाला है, सब कुछ रहने वाला है, ऐसा हमारे दिमाग में तुरंत आएगा। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिख रहा है डीसी टर्म ओनली, कोसाइन टर्म, साइन टर्म, तो हम तो तुरंत फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बाकी ऑप्शन भी ध्यान आएंगे, ठीक है। तो चलिए अपन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये सिग्नल आपने चेक कर लिया कि ये इवन है कि ऑड है, ये आपने पता कर लिया, इट इज नाइदर इवन नॉट ऑड। सो लेट्स चेक इज इट फॉर सेटिस्फाइंग हाफ वेव सिमेट्रिक और नॉट। तो ये तो आपका एफ टी हो गया है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करके देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है ना, ये शिफ्ट हुआ, ओके। सो इसको कहाँ शिफ्ट करें, t/2 को इधर ले जाते हैं, तो t/2 हमारा इधर आ गया है ना, तो ये हमारा ऐसा, इसको ऐसा करते हैं, ये t/2 ऐसा आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ ऐसा आ गया, ये आपका आ गया, वैसे ही हम यहाँ से ऐसा करते हैं, ठीक है, और ये ऐसे कुछ प्लॉट करते हैं और ये हमारा ऐसा होता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे -t है, ठीक है, ये आपका -t/2 आपका शिफ्ट हुआ ही था, है ना, -t/2 से तो शिफ्ट हुआ था, ये -3t/2 हो गया, बेसिकली उधर शिफ्ट हो गया, और ये +t/2 आपका आ गया है ना। क्या ये सिग्नल आपका इस सिग्नल से मैच करता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, ये सिग्नल तो मैच नहीं करता, मतलब एफ टी प्लस t/2 इज नॉट मैचिंग विथ एफ टी। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, मैग्नीट्यूड रिवर्सल। तो मैग्नीट्यूड रिवर्सल करेंगे तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ से ये सिग्नल आएगा और ये सिग्नल ऐसे वो होगा, फिर ये सिग्नल आपका हाँ, ये सिग्नल आपका ऐसा आएगा, ठीक।
उसके बाद ये सिग्नल कुछ ऐसा आएगा और ये आएगा आपका ये, ठीक है। फिर ये आपका ऐसा आएगा और ये आएगा। ये सिग्नल हो गया आपका माइनस ऑफ एफ टी प्लस टी बाई टू। अब इसको आप चेक करिए, क्या ये ऐसा ही है जैसा हम देखे हैं? बिल्कुल ये एफ टी के जैसा ही है। तो आप ये मान सकते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी प्लस टी बाई टू। मतलब ये सिग्नल तो हाफ वेव, और कौन सा हाफ वेव? ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ना n की वैल्यू जब जब इवन होगी तब तब इसका फोरियर कोफिशिएंट जीरो होने वाला है। तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि ये पूरे सारे डीसी टर्म, कोसाइन टर्म और साइन, मतलब कोसाइन टर्म बोलने से मेरे को ये समझ में आता है कि कोसाइन टर्म के सारे टर्म, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का 1 ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, सारे फ्रीक्वेंसी पे कोसाइन टर्म होने वाला है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। आपका तो दिखा रहा है कि सी एन की वैल्यू जब जीरो कब होगी? जब एन की वैल्यू इवन हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस सिग्नल में ऑड ही कंपोनेंट रहने वाले हैं। अब ये सिग्नल ऑड है कि इवन, चेक कर लीजिए। आपका ये सिग्नल तो वैसे ऑड और इवन टर्म है नहीं, है ना? ये सिग्नल आपका ऑड और इवन टर्म है नहीं। इसके वजह से यहाँ पे ये हो सकता है कि देखिए आप ये वाला ऑप्शन लगा नहीं सकते। बेसिकली आपको मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। ये ऑप्शन लगा नहीं सकते क्योंकि इसमें सारे टर्म की बात कर रही है, सारे टर्म है नहीं। क्या सिर्फ साइन टर्म होगा? तो ऑब्वियसली भैया देखो, ये ना हाफ इवन, ये सिग्नल ना इवन है ना ऑड है, तो सिर्फ साइन टर्म कैसे हो सकता है? इसमें तो कोसाइन टर्म भी होगा, तो ये भी कैंसिल। इसमें क्या सिर्फ ऑड साइन टर्म हो गया? भैया जब सिर्फ साइन टर्म ही नहीं होगा तो ऑड ही कैसे होगा? ऑड होगा, जरूर होगा, लेकिन सिर्फ साइन टर्म नहीं होगा, तो ये कैंसिल। आपके पास ये बच जाता है। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि ऑड हार्मोनिक्स, मतलब हार्मोनिक्स मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस मॉड्यूल के, कि हार्मोनिक्स का मतलब होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें ये तो तय हो गया कि इसमें ऑड होने वाला है, ऑड टर्म ही आएंगे, ऑड फ्रीक्वेंसी ही आएंगे, और नाइदर इवन है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है। इसका मतलब सीधा सीधा ये बोलता है कि इसका जो फोरियर कोफिशिएंट होगा वो पूरा का पूरा, मतलब उसमें आपका ए जीरो भी आने वाला है, ए एन भी आने वाला है, बी एन भी आने वाला है। ए जीरो नहीं फिर आएगा क्योंकि ये इवन टर्म माना जाता है जीरो। तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आएगा। भले कोसाइन टर्म भी आएगा, इसमें साइन टर्म भी आएगा, दोनों आएगा, लेकिन ऑड ही आएगा। तो इसमें आप सिंपल बोल सकते हैं कि इसमें ऑड हार्मोनिक्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए अगर आप हाफ वेव सिमेट्रिक नहीं पढ़े होते तो आप तो सीधा फर्स्ट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा डीप में जाना चाहिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना? ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? इसको आप बताइएगा। इसको ना आप टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है उसमें आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताइएगा, अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ठीक है? ये क्वेश्चन ये ऐसा है, माइनस टी बाई टू, ये टी बाई टू है, और ये टी है, ये 3t/2 है, ठीक है? और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका ना ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका जो फोरियर सीरीज होगा उसमें फोरियर सीरीज ऑफ द सिग्नल विल कंसिस्ट ऑफ, याद रखिएगा, विल कंसिस्ट ऑफ कौन से टर्म्स है। पहला ऑप्शन आपको बोल देता हूँ, इसमें डीसी होगा, कोसाइन होगा, साइन टर्म होगा। फर्स्ट ऑप्शन यही रहता है। सेकेंड टर्म होगा कि इसमें सिर्फ साइन टर्म ही होगा ओनली, ठीक है? साइन टर्म ओनली। सी ऑप्शन है, इसमें डीसी टर्म होंगे और ऑड साइन टर्म होगा, ठीक है? ऑड साइन टर्म होगा। और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, कि इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होने वाले हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन को, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें आप इसको देखिएगा। आपको मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनेगा तो इसमें आप कुछ डीसी सिग्नल ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी डीसी सिग्नल ऐड करने में, है ना? डीसी सिग्नल ऐड करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आधा पीछे, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिग्नल में क्या है ना? क्योंकि कई बार आपको समझ में नहीं आता कि क्या है, तो लेकिन यहाँ पे विल कंसिस्ट ऑफ मतलब श्योरली बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो उसको आपको चेक करना है। आपका ये होमवर्क है, आप इसको टेलीग्राम में पोस्ट करिएगा। अगर आप सॉल्यूशन होगा तो मैं वहाँ पे आपको सही गलत बता दूंगा, ठीक है? Okay, so we'll move on, and this was your homework. So okay, now we'll see
final conclusion that we'll see a table, and this table will surely help you in your competitive exams, because many small exams or one liner questions, when they are asked from Fourier series, they are mostly asked from this table only. So once you will understand this table and if you remember it, then most of the one liner questions you will be able to solve. And if questions are tricky and questions are solvable, then you can go for what we have studied earlier. Okay, so we'll see our table. Okay, so let's plot it. Almost this table will really help you in your future. So first we'll see ft, your ft nature of ft. Okay, nature of ft means your signal is given, what is its nature. Okay, and then we'll go on and we'll see what is its Fourier coefficient actually. Okay, what is its Fourier coefficient, we'll go for it. And then we'll see next part, that is what is its trigonometric Fourier coefficient. It is complex Fourier coefficient, exponential Fourier coefficient. So trigonometric Fourier coefficient, what is a0, what is an, what is bn, what is its value. And then we'll see terms which are trigonometric terms. Okay, trigonometric terms which are present in it. Okay, so we'll see it like this way. So first of all we'll see if our signal ft is nothing, means if ft is not neither even nor odd, it is non-symmetric. Okay, non-symmetric signal, our signal is non-symmetric, then our Fourier coefficient, एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट आपका जो Cn होगा वो जनरली कॉम्प्लेक्स ही होगा. ठीक है, क्योंकि आपका जो Ft है वो तो इवन और ऑड है ही नहीं. तो जब इवन और ऑड नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो उसका जो Cn होता है, जो A0 An Bn, ये सब सारे टर्म्स रहेंगे और आपका जो Cn होगा जनरली कॉम्प्लेक्स होगा. इसका मतलब ये है कि Cn की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसमें रियल टर्म्स भी रहेंगे और इमेजिनरी टर्म भी रहेंगे. मतलब आपका जो Cn की वैल्यू होगा वो जनरली इस वाले टर्म को फॉलो करेगा, an माइनस an/2 माइनस जे bn/2, ये वाले टर्म को फॉलो करेगा. और ये वाले टर्म को जरूर फॉलो करेगा कि c ऑफ माइनस n, जब आप c ऑफ माइनस n निकालेंगे और c ऑफ n कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये दोनों बराबर रहने वाले हैं. ये टर्म को जरूर और जरूर फॉलो करेगा. ठीक है, तो अगर आपका ft जो ft है वो रियल वैल्यूड है और नॉन सिमेट्रिक है. ठीक है, ft आपका रियल वैल्यूड है और आपका नॉन सिमेट्रिक है, तो आपका फोरियर कोफिशिएंट जनरली कॉम्प्लेक्स ही होने वाला है. उसमें रियल और इमेजिनरी टर्म दोनों होंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. और अगर ऐसा होता है तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट है A0 An Bn, ये सब के सब एग्जिस्ट करने वाले हैं. मतलब A0 भी रहने वाला है, Bn भी रहने वाला है और An भी रहने वाला है. ये तीनों रहने वाले हैं. अगर आप टर्म्स में बात करेंगे तो A0 DC टर्म्स को दिखाता है, An कोसाइन टर्म्स को दिखाता है और Bn साइन टर्म्स को दिखाता है. तो ये तीनों टर्म आपके रहने वाले हैं. आप इस चीज़ को याद रखिएगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के सिग्नल में. इसको थोड़ा सा हम एक्सपांड कर देते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं, इसको भी हम बढ़ा देते हैं. ठीक है, ये हो गया. अब हम सेकेंड लेते हैं कि अगर आपका ft रियल वैल्यूड तो है, ठीक है, बढ़िया रियल वैल्यूड है, और आपका इवन सिग्नल है. आपका अगर सिग्नल इवन है इन नेचर, आपने बाहर से सामने से ही देखते हैं समझ में आ गया. इवन और ऑड तो आपको पहचानना आता ही है, मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने कवर कर ही रखा है. तो अगर आपका इवन है तो आप याद रखिएगा कि आपका जो फोरियर कोफिशिएंट है वो भी प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल. ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है. याद रखिएगा कि जो Bn की वैल्यू होती है उसमें वो 0 हो जाती है, तो Cn आपका सिर्फ और सिर्फ वो इवन टर्म्स ही रहने वाले हैं, है ना. तो प्योरली रियल रहने वाला है और Cn की वैल्यू भी इवन ही होगी. बिल्कुल भी जो Cn की वैल्यू होगी वो भी इवन होगी. इवन सिग्नल के लिए जो फोरियर कोफिशिएंट होता है वो बिल्कुल इवन ही होता है. ठीक है, रियल वैल्यूड इवन सिग्नल है, उसका रियल और इवन ही होगा. ठीक है,
और अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट की बात करें तो देखिए बेसिकली ये रियल होने वाला है, ठीक है। रियल कब होता है, सी एन की वैल्यू रियल कब होगी, देखिए सी एन की वैल्यू ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू होती है, ये रियल कब होगी, मतलब जब बी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस टर्म में आपको पहले याद रखना है कि कभी भी आपको इवन सिग्नल दिखता है तो आपको सीधा सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि बी एन की वैल्यू इसमें जीरो होने वाली है। इसमें कौन से टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ए जीरो और ए एन की वैल्यू ही सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगी इसमें, और बी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम टर्म्स की बात करें तो देखिए बी एन किसको दिखाता है, साइन टर्म्स को दिखाता है, तो इसमें साइन टर्म जीरो हो जाएगा, तो साइन टर्म रखते ही नहीं है, सिर्फ इसमें डीसी टर्म आएगा और कोसाइन टर्म ही आएगा जब आपका सिग्नल रियल वैल्यूड और इवन सिग्नल है। तो सिंपल सा बात, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और पीएसयूज के अगर अलग अलग एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म पे दिख जाएंगे, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसरो जैसे एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा पार्ट लेते हैं कि अगर आपका सिग्नल रियल वैल्यूड तो है, ठीक है, बिल्कुल आपका रियल वैल्यूड है और आपका ऑड सिग्नल है, ठीक है, आपका सिग्नल ऑड है, मतलब आपको देखते साथ समझ में आ जा रहा है कि ये सिग्नल बिल्कुल ऑड है, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट एक जैसे हैं, देखते साथ समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस टाइप के सिग्नल के लिए आपको याद रखना है कि आपका जो सी एन की वैल्यू होगी वो प्योरली इमेजिनरी होगी, है ना। ये वाले जो ऑड सिग्नल होते हैं, ऑड सिग्नल में क्या होता है कि आपका ऑड सिग्नल जैसे ही आता है आपको ये याद रखना है कि इमेजिनरी टर्म ही रहेगा, रियल टर्म इसमें खत्म हो जाता है। मतलब अगर अपन सी एन की वैल्यू ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू बोले तो ए एन बाई टू खत्म हो जाता है, तभी तो वो इमेजिनरी टर्म में आएगा, प्योरली इमेजिनरी। तो इसमें आपको याद रखना है कि प्योरली इमेजिनरी आने वाला है और आपका सिग्नल बिल्कुल ऑड तो होने वाला है। ये मतलब ये याद रखें कि फोरियर कोफिशिएंट जो होते हैं वो इसके जैसा ही होता है, ठीक है। ये अगर सिग्नल ऑड है तो फोरियर कोफिशिएंट भी ऑड होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन से टर्म होंगे, इमेजिनरी वाले या रियल वाले। तो आपको ऑड है तो इमेजिनरी और इवन है तो रियल, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। और अब ऑड इसमें आप कौन सा टर्म हट गया था, प्योरली इमेजिनरी है, मतलब आपका ए एन हट गया था और ए जीरो हट गया था, ठीक है। तो ए जीरो और ए एन की वैल्यू इसमें जीरो हो जाती है और सिर्फ बी एन की वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है ना, ये बात को याद रखेगा। और अगर आपको कोई सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई सिग्नल रियल वैल्यूड और ऑड सिग्नल दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि उस टर्म उसके फोरियर कोफिशिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ साइन टर्म ही मिलने वाले हैं और कोई टर्म नहीं मिलेगा, ना डीसी वैल्यू मिलेगा ना आपको मिलेगा, क्योंकि डीसी वैल्यू कैसे मिलेगा आप बताइए ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे एक प्लॉट करता हूँ। ये सिग्नल आपका ये सॉरी ये ऐसा है, ये ऐसा सिग्नल है और ये ऐसे चले जा रहा है। ये सिग्नल आप देख सकते हैं ये ऑड है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट सेम है। अगर आप इसका डीसी वैल्यू निकालने जाए तो आपको यही पता होगा कि भैया मैं एक टाइम पीरियड में इसको निकालता हूँ। डीसी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वन टाइम पीरियड में हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, मतलब एरिया अंडर द कर्व। आप इसको निकालिए, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो आपको अपने आप ही ये वैल्यू कैंसल आउट होकर जीरो हो जाएगी, तो इसका डीसी टर्म तो होगा ही नहीं, पहली बात तो सीधा सीधा याद रखना है। और चूंकि ये ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल का जब फोरियर कोफिशिएंट निकालते हैं, मैंने पहले भी निकाल रखा है, अभी मैं सिर्फ कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको, तो प्योरली इमेजिनरी टर्म ही आएगा और इमेजिनरी टर्म आएगा तो ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए एन की वैल्यू जीरो हो गई तो उसमें कोसाइन टर्म आना ही नहीं है, तो सिर्फ साइन टर्म आएगा। वैसे इवन सिग्नल के लिए आपको याद होगा कि इवन सिग्नल तो हम कैसे करते थे, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा, ये सिग्नल देख के ही लगता है कि ये इवन सिग्नल है। ऐसे इवन सिग्नल के लिए आपका सिर्फ कोसाइन टर्म आता है। और इसमें देखिए अगर आप इसको एरिया अंडर द कर्व निकालने जाएं तो एरिया अंडर कर्व आपको ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डीसी वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहने ही वाली है, तो डीसी टर्म रहता है और ऊपर से इवन है इसलिए कोसाइन टर्म भी रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना, ये तीन चीज़ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं थोड़ा सा हाफ वेव सिमेट्री पे भी ले चलता हूँ, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये टेबल भयंकर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तीसरे के बाद हम चौथे में आते हैं। चौथा, अगर आपका सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है, हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है तो क्या होगा, आपको ये याद रहना चाहिए कि भैया हाफ वेव सिमेट्री, तो सी एन की वैल्यू जीरो होगी फॉर एन इवन। आपका जब भी एन इवन होगा तो आपका ये जब ऑड हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है तो आपका
सी एन की वैल्यू इवन होने वाली है, ठीक है। बेसिकली देखिए ये यही कंडीशन है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अगर वो एफ टी इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ टी प्लस माइनस टी बाई टू को फॉलो करता है ना, ये इसको ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक बोलते हैं। ये तब अगर सेटिस्फाई करता है, देखिए ये मैं आपको पहले भी बताया था कि इवन सिग्नल भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल में अच्छी तरीके से समझा दिया था कि इवन सिग्नल था, इवन सिग्नल था आपका, ये वाला इवन सिग्नल था, और इवन सिग्नल भी हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा था, मतलब ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो आपका इवन सिग्नल ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन उसके इवन टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सिर्फ उसका कोसाइन टर्म का और टर्म ही रह जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए सी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी एन जब जब इवन रहेगा, तो इसमें एन जब जब इवन रहेगा तो ए जीरो की वैल्यू इसमें हमेशा जीरो रहेगी, इसमें डीसी टर्म, क्योंकि ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है तो ऑड की वजह से ए जीरो की वैल्यू तो हमेशा जीरो रहने ही वाली है। ए एन की वैल्यू जीरो रहेगी क्या, ए एन की वैल्यू कब जीरो रहेगी, जब, और बी एन की वैल्यू कब जीरो रहेगी, जब आपका, अभी मेरे को पता नहीं ना कि सिग्नल इवन है ऑड है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक मतलब ये वाला है। सिग्नल इवन है ऑड है ये नहीं, मेरे को नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ए जीरो तो जीरो रहने ही वाला है, क्योंकि ये ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक है, तो ए जीरो तो साला जीरो रहेगा ही रहेगा, कोई शक नहीं है होगा। लेकिन ए एन और बी एन की वैल्यू जो है ना, वो आपका सिग्नल इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अभी मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ, तो जनरल के लिए ए एन की वैल्यू जीरो और बी एन की वैल्यू जीरो कब रहने वाली है, जब आपका एन की वैल्यू इवन रहने वाली है ना, ये चीज को याद रखिएगा। इसमें आप डीसी टर्म को तो भूल ही जाइए, इसमें डीसी टर्म रहने ही नहीं वाला है, अगर ऑड हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है तो इसमें सिर्फ होगा कोसाइन टर्म, साइन टर्म, और वो भी कौन सा कोसाइन टर्म और साइन टर्म, और वो भी कौन से वाले कोसाइन टर्म और साइन टर्म, बिल्कुल ऑड वाले, ऑड कोसाइन टर्म और ऑड साइन टर्म ही इसमें सिर्फ रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट कंडीशन बताता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर सिग्नल आपका सिग्नल इवन है, याद रखिएगा सिग्नल इवन है और वो हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, और हाफ वेव सिमेट्रिक ये वाले सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, देखिए सिग्नल इवन है तो आपको पता है ना कि जब भी सिग्नल इवन होगा तो आपका फोरियर कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी सिग्नल इवन होगा तो फोरियर कोफिशिएंट प्योरली रियल होगा, तो आपका ये प्योरली रियल अभी भी कहलाएगा, है ना। और लेकिन इसमें अब प्योरली रियल कहलाएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ ए एन वाले टर्म्स रहने वाले हैं, है ना। ए जीरो तो जीरो होने वाला है क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, तो ए जीरो की वैल्यू तो जीरो होगी ही, ये कंफर्म है। अब इसमें बी एन की वैल्यू भी जीरो होगी क्या, क्योंकि बी एन की वैल्यू इसलिए जीरो होगी पूरी तरह से क्योंकि ये सिग्नल इवन है, तो बी एन की वैल्यू तो आप प्योरली जीरो मान के चलिए, है ना। ए एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रियल है, तो ए एन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन ए एन की वैल्यू भी जीरो कब होगी, जब एन की वैल्यू इवन होगी। बाकी जगह पे एन रहेगा, ए एन रहेगा, बाकी सिर्फ एन इवन पे रहेगा। तो सी एन की वैल्यू भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सी एन की वैल्यू जीरो होगी जब एन की वैल्यू इवन होगी, ये तो हमने कंडीशन देख ही रखा है। इसमें टर्म्स की बात करें तो देखिए डीसी टर्म नहीं रहेगा, साइन टर्म नहीं रहेगा, कोसाइन टर्म रहेगा, लेकिन कोसाइन टर्म कौन सा वाले कोसाइन टर्म रहेंगे, सिर्फ ऑड वाले कोसाइन टर्म रहेंगे। क्यों ऑड वाले रहेंगे, क्योंकि भैया हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, लेकिन इवन है इसलिए कोसाइन टर्म ही रहने वाला है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि क्यों सिर्फ कोसाइन टर्म रहने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सिग्नल ऑड है और हाफ वेव सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है तब क्या होगा। देखिए ऑड है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ऑड अगर सिग्नल है तो ऑड सिग्नल के लिए जो फोरियर कोफिशिएंट होता है वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। आपको यहाँ पे मैं येलो से लिख देता हूँ, प्योरली इमेजिनरी होते हैं, और इसमें और हाफ वेव सिमेट्रिक है तो सी एन की वैल्यू जीरो होगी एन जब भी इवन होगा। मुद्दे की बात तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये है कि देखिए हाफ वेव सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि ए जीरो की वैल्यू जीरो होगी, इसमें कोई भी डीसी टर्म नहीं रहने वाला। उसके बाद ए एन की बी एन की अच्छा ए एन की वैल्यू होगी क्या, ए एन की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होगी क्योंकि ये ऑड है, तो ए एन की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, चाहे इवन टर्म हो चाहे ऑड टर्म हो। लेकिन
बी एन की वैल्यू होगी, होगी, लेकिन सारे टर्म के लिए होगी क्या, सारे फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं, सारे फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं होगी, इवन वाले पे जीरो हो जाएगी, तो बी एन की वैल्यू जीरो होगी जब एन की वैल्यू इवन होगी, है ना। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि डीसी टर्म नहीं रहने वाला, ए एन मतलब कोसाइन टर्म नहीं रहने वाला, साइन टर्म क्या हर फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा, नहीं, सिर्फ ऑड के लिए रहेगा, क्योंकि इवन के लिए तो जीरो हो जा रहा है, तो ऑड साइन टर्म ओनली, ये आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना। तो ये एक टेबल है, ये कंक्लूजन टेबल है जो मैं आपको फोरियर सीरीज के लिए बताना चाह रहा था, और ये बहुत इट इज utmost important table for your Fourier series, for understanding Fourier series. If you know this table, then you will be able to solve many type of questions by only seeing its nature of the FT. Okay, so here comes to the end of this lecture. We'll see in the next lecture, we'll see some type of questions, very important type of questions, like if questions are asked that find out triangular wave. Okay, एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव, इसका आपको फोरियर कोफिशिएंट निकालना है। अगर आपको कोई बोलेगा कि सॉ टूथ का मान लीजिए ऐसा है, सॉ टूथ का आपको फोरियर कोफिशिएंट निकालना है, अगर आपको कोई बोलता है स्वीट पीरियोडिक पल्स का फोरियर कोफिशिएंट निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल, ये जो थोड़े से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को हम लोग गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पावर की भी बात करेंगे कि हम अगर पावर निकालना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें फोरियर सीरीज से, तो हम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना। और हम देखेंगे कि इसका एग्जिस्टेंस कंडीशन क्या है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर दें, अगर नहीं होगा तो उसके बाद एक और ले लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।